اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خیران، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گی جی خیران۔ آج کا ہمارا درس فقہ احکام کا کہ جس میں ہم نے پڑھنا ہے طلاق احکام۔ جو مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ اور عاقل ہو، لیکن اگر 10 سال کا بچہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کے بارے میں احتیاط کا خیال رکھیں، اور اسی طرح ضروری ہے کہ مرد اپنے اختیار سے طلاق دے، اور اگر اسے اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے تو طلاق باطل ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو شخص طلاق کی نیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو شخص طلاق دے رہا ہے اس کا اس طلاق کی نیت کا ہونا بھی لازم ہے۔ مثلا اگر وہ مذاق میں کہے یا نشے کی حالت میں کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو طلاق صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو بھی بندہ جو ہے مرد جو ہے وہ اپنی خاتون کو طلاق دینا چاہ رہا ہے، سب سے پہلے اس کی شرط ہے کہ وہ بلوغت کی شرط، یعنی وہ بالغ ہو اور عاقل ہو، سوچ سمجھ رکھتا ہو، اس کو مجبور بھی نہ کیا گیا ہو، کیونکہ اگر مجبور کیا گیا ہوگا تو پھر اس کی طلاق صحیح نہیں ہے۔ اور وہ جو صیغہ اس نے پڑھا ہے طلاق کا یا طلاق دی ہے اس میں اس کی نیت کا ہونا بھی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بچہ کہ جو اپنی 10 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی بلوغت کو نہیں پہنچا، لڑکا جو ہے وہ 15 سال کا ہو تو تب بلوغ کو بولتے ہیں نا۔ اب 10 سال کا ہے، اب اس نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس کے بارے میں احتیاط کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کس طرح سے، یعنی وہ جو اس کا بیوی ہے نا اس میں احتیاط کا خیال اس طرح سے رکھنا ہے، یعنی وہ بیوی اس کی بیوی ہی ہے اور اس نے اس کو طلاق بھی دی ہے اور طلاق نہیں بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جتنا میرے علم میں ہے اس میں احتیاط کا خیال اس طرح سے رکھنا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ جو ہے وہ اس کو برداشت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر وہ بھی دیتا ہے 10 سال کا بچہ طلاق دیتا ہے، وہ یہ بلوغت شرط ہے نا کہ بالغ ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ عورت طلاق کے وقت حیض یا نفاس سے پاک ہو۔ اگر وہ حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے، مثلا وہ خون دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی حالت نجاست میں ہے خاتون، تو اس کو وہ طلاق جو ہے نہیں دے سکتا۔ اگر اس کے شوہر نے اس کی پاکی کے دوران اس سے مجامعت نہ کی ہو، اور ان 2 شرطوں کی تفصیل جو آگے مسئلے میں بیان کی جائے گی ان کے علاوہ، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ نہ کی ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی عورت کو جو ہے وہ پاک ہو جائے، طہارت باطہارت ہو، اس کو پھر اس کو طلاق دی جائے۔ عورت کو حیض یا نفاس کی حالت میں 3 صورتوں میں طلاق دینا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ یہ جو 3 صورتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ ان 3 صورتوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی خاتون حیض کی حالت میں بھی ہے تب بھی اس کو طلاق دینا صحیح ہے۔ نمبر 1، شوہر سے نکاح کے بعد اس نے مزنی نہ کی، ٹھیک ہے، یعنی اب شوہر کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، اس نے مجامعت نہیں کی اور شوہر چاہتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں، تو پھر وہ چاہے وہ حالت حیض میں ہے چاہے وہ حالت نفاس میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ معلوم ہو کہ وہ حاملہ ہے، اور اگر یہ بات معلوم نہ ہو اور شوہر اسے حیض کی حالت میں طلاق دے دے اور بعد میں شوہر کو پتہ چلے کہ وہ حاملہ تھی تو وہ طلاق باطل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو معلوم ہے کہ وہ حاملہ ہے، ٹھیک ہے، اگر معلوم نہیں ہے کہ وہ حاملہ ہے اور اس نے طلاق دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ جب اس نے اس کو طلاق دی تھی وہ حاملہ تھی تو اس کی طلاق جو ہے وہ باطل ہے۔ اور احتیاط کا خیال رکھنا بہرحال بہتر ہے، اگرچہ دوبارہ طلاق دینے سے ہو، ٹھیک ہے، بہتر یعنی احتیاط کس چیز میں ہے، اگرچہ کہ اس کو دوبارہ طلاق دینا پڑے تو وہ اس کو دوبارہ طلاق دے گا، لہٰذا وہ احتیاط پر عمل کرے گا، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ احتیاط جو ہے وہ دوبارہ طلاق دینے کے ساتھ ہی ممکن ہو۔ مرد غیر حاضری یا کسی بھی اور وجہ سے اگرچہ اپنی بیوی کی مخفی رکھنے کے سبب یہ معلوم نہ کر سکتا ہو کہ وہ حیض یا نفاس سے پاک ہے یا نہیں، لیکن اس صورت میں اطاعت واجب کے بنا پر ضروری ہے کہ مرد انتظار کرے تاکہ بیوی سے جدا ہونے کے بعد کم از کم 1 مہینہ گزر جائے اور اس کے بعد اسے طلاق دے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب ہے کہ وہ شخص کے جو اپنی بیوی سے اس نے مجامعت کی ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور وہ یہ بھی نہیں اس کو پتا کہ اب پتہ نہیں وہ اس ٹائم حالت نجاست میں ہے، یعنی حیض کی یا نفاس کی نجاست کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر وہ دینا بھی چاہتا ہے تو کم از کم اتنا دے کہ وہ اس سے علیحدہ ہو گئی ہے اور 1 مہینے بعد جا کر وہ اس سے طلاق دے۔ اگر کوئی شخص عورت کو حیض سے پاک سمجھے اور اسے طلاق دے دے
उसने समझा था कि अब ये पाक है, बाद में पता चला कि ये उसी हालत में थी, तो तलाक जो है वो बातिल है। मगर दर फर्ज मज़कूर अगर शोहर उसे हैज़ की हालत में समझे और तलाक दे दे और बाद में मालूम हो कि पाक थी, तो उसकी तलाक सही है। जिस शख्स को इल्म हो कि उसकी बीवी हैज़ या निफास की हालत में है और अगर वो बीवी से जुदा हो जाए, मसलन सफ़र इख्तियार करे और उसे तलाक देना चाहता है, तो उसे चाहिए कि इतनी मुद्दत सब्र करे कि जिसमें उसे यकीन और इत्मीनान हो जाए कि उसकी खातून जो है वो पाक हो चुकी है। और अगर ये जान ले कि औरत पाक है और उसे तलाक दे सकता है, अगर उसे शक हो तब भी यही हुक्म है, यानी वो तलाक दे सकता है। लेकिन उस सूरत में कि गायब शख्स की तलाक के बारे में मसला 2444 में जो शर्त बयान हुई है, उसका ख्याल रखे। 2464 में, ठीक है, जो ऊपर हमने 3 शर्तें पढ़ी हैं ना, उसमें कि मर्द जो है वो गैर हाज़िर था, ठीक है? अब वो गैर हाज़िर था, अब उसको उस वक़्त नहीं पता कि उसकी बीवी जो है इस हालत में कौन-सी हालत में है, ठीक है? तो उस वक़्त उतना इंतज़ार करे, यानी तकरीबन 1 माह गुज़र जाए, उसके बाद वो जाकर अपनी बीवी को तलाक दे। जो शख्स अपनी बीवी से जुदा हो, अगर उसे तलाक देना चाहे, तो अगर वो मालूम कर सकता हो कि उसकी बीवी हैज़ नफास की हालत में है या नहीं, तो अगरचे औरत की हैज़ की आदत या उन दूसरी निशानियों को जो शुरू में मुअय्यन है, देखते हुए उसे तलाक दे और बाद में मालूम हो कि वो हैज़ नफास की हालत में थी, तो उसकी तलाक सही नहीं है, ठीक है? कुल्ली तौर पर कायदा है कि औरत को तलाक जो है वो हैज़ और नफास के से पाक हो तब देना ज़रूरी है। अगर हैज़ या नफास की हालत में है, अगरचे उसे मालूम है या नहीं है और बाद में उसकी उसके लिए सूरत जो है वो आया हो जाए, तो फिर उसके लिए उसकी तलाक उसी के हिसाब से होगी, ठीक है? यानी उसको मालूम है कि वो हैज़ से नफास है, उसने तलाक दे दी, बाद में पता चला वो उसी हालत में थी, तो फिर उसका तलाक जो है वो बातिल है। या वो है कि पहले उसे पता था कि ये पाक वो भी नजिस है, ठीक है? और उसने इंतज़ार किया कि वो पाक हो जाए, उसने उसको तलाक दे दी है, ठीक है? तो अब चूँकि फिर उसे मालूम हो कि हाँ, वाक़ईअन जब उसने दी थी, तो वो हालत पाकीज़गी में दी थी, तो फिर उसकी तलाक जो है वो सही हो जाती है। या बेशक अगर वो उसी हालत में थी औरत को और मर्द ने समझा है कि वो हैज़ की हालत में ही है, उसने उसको तलाक दे दी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो हैज़ से पाक थी, तो तब भी उसकी तलाक जो है वो सही है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से खा हैज़ की हालत में हो या पाक हो, मुजामआत करे और फिर उसे तलाक देना चाहे, तो ज़रूरी है कि सब्र करे, हत्ता कि उसे दोबारा हैज़ आ जाए और फिर वो पाक हो जाए। लेकिन अगर ऐसी सूरत में अगर उसने मुजामआत के बाद तलाक दी जाए, जिसकी उम्र 9 साल से कम हो या मालूम हो कि वो हामला है, तो उसमें कोई इश्काल नहीं। अगर औरत याइसा हो तब भी यही हुक्म है, यानी वो तलाक दे सकता है। याइसा का मतलब क्या होता है? यानी जो अपनी जिसको अब हैज़ आना बंद हो गया है। अगर कोई शख्स ऐसी औरत से हमज़िंदगी करे जो हैज़ के नफास से पाक हो और उसी पाकी की हालत में उसे तलाक दे दे और बाद में मालूम हो कि वो तलाक देने के वक़्त हामला थी, तो वो तलाक बातिल है और एहतियात का ख़्याल रखना बेहतर है, चाहे तलाक की तजदीद के ज़रिए ही क्यों ना हो, ठीक है? एहतियात बेहतर है किस चीज़ में? यानी बेहतर है कि उसको दोबारा तलाक दी जाए। अगर कोई शख्स ऐसी औरत से मुजामत करे जो हैज़ या नफास से पाक हो, फिर वो उससे जुदा हो जाए, मसलन वो कहीं सफ़र पे चला गया है या कहीं बाहर कमाने चला गया है, लिहाज़ा अगर वो चाहे कि सफ़र के दौरान उसे तलाक दे और उसकी पाकी या नापाकी के बारे में वो ये ना जान सकता हो, यानी अब वो जो छोड़ कर चला गया, अब उसे नहीं पता उसकी बीवी की हालत क्या है, तो ज़रूरी है कि इतनी मुद्दत सब्र करे कि औरत को उसकी पाकी के बाद हैज़ आए और वो दोबारा पाक हो जाए, ठीक है? यानी अब उसको नहीं पता कि अब वो देना जो चाह रहा है इस हालत में वो पाक है या नहीं है। तो अब वो मुद्दत अब उस इतना सब्र करे, वो अब उसकी मुद्दत गुज़र जाए, उसको दोबारा हैज़ आए, फिर वो पाक हो जाए और एहतियात वाजिब ये है कि वो मुद्दत 1 महीने से कम ना हो और जो कुछ कहा गया है उसकी रियायत रखते हुए तलाक दे और उसके बाद मालूम हो जाए कि तलाक उस पहली पाकी में वाक़या हुई है तो कोई इश्काल नहीं है, ठीक है? यानी अगर उसने तलाक दे दी थी, ठीक है? पहली पाकी में ही तलाक दे दी थी और उसको दोबारा तलाक दी है, यानी उसको नहीं पता था। एहतियात की रियायत करते हुए उसने उसको दोबारा तलाक दी है और बाद में उसको पता चले कि जो पहली तलाक दे दी थी, वही असल में उसमें तमाम शराइत पूरी हो रही थी, तो उसमें कोई इश्काल नहीं, वो तलाक तलाक ही है। अगर कोई औरत अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है, जिसे पैदाइशी तौर पर या किसी बीमारी या बच्चे को दूध पिलाने की वजह से या दवा इस्तेमाल करने या किसी और वजह से हैज़ ना आता हो और उसकी उम्र की दूसरी औरतों को हैज़ आता हो, तो ज़रूरी है कि जब उसने ऐसी औरत से
मुजामियत की उस वक़्त से 3 महीने तक उससे मुजामियत ना करे और बाद में उसे तलाक दे दे, ठीक है? यानी अब जैसे बच्चे की विलादत होती है तो माँ को कई-कई माँओं को 2-2 साल नहीं आता, 3-3 साल नहीं आता, 4-4 साल नहीं आता। तो अगर वो उस मुद्दत के दौरान के यानी उसको कोई वजह बनी है ना कि उसको हैज़ नहीं आ रहा, अगर उस वजह के होते हुए वो हैज़ नहीं आ रहा, उस दौरान अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे दे तो फिर उसके लिए है कि वो इतना सब्र करे, ठीक है? यानी उसको कब फिर तलाक देनी चाहिए कि जिस औरत को हैज़ नहीं आ रहा, तो उसके लिए सैयद फरमाते हैं कि 3 महीने तक वो उससे बिल्कुल अलहदा रहे, फिर बाद में उसको तलाक दे दे। ज़रूरी है कि तलाक का सीगा सही अरबी लफ्ज़ में हो यानी तालिक़ुन के साथ पढ़ा जाए और 2 आदिल मर्द उसे सुनें। अगर शौहर खुद तलाक का सीगा पढ़ना चाहे और मिसाल के तौर पर उसकी बीवी का नाम फ़ातिमा हो तो कहे ज़व्वजती फ़ातिमा तो तालिक़ुन यानी मेरी बीवी फ़ातिमा आज़ाद है। और अगर वो किसी दूसरे शख़्स को वकील बनाए और वकील कहे तो फिर वकील को जी के कहे कि ज़ौजतु मुवक्किली फ़ातिमा तो तालिक़ुन। अगर औरत मुअय्यन हो तो उसका नाम लेना लाज़िम नहीं। और अगर औरत हाज़िर हो तो उसकी तरफ इशारा करके ये कहना भी कि हाज़िही तालिक़ुन, ठीक है? यानी इशारे के तौर पर भी वो कह सकता है। अगर वो सामने मौजूद है यानी एक ही औरत है कि उस टाइम तलाक का उसी का पड़ जा रहा है, उसी का ही तो फिर उसका नाम लेना भी लाज़िम नहीं है। ठीक है? यानी अगर कई औरतें हैं तो फिर हर उस औरत का कि जिसकी तलाक हो रही है उसका नाम लेना लाज़िम है। या उसे मुखातिब करके है अंति तालिक़ुन कि तुम अब तलाक आज़ाद होगी। अगर मर्द अरबी में तलाक कसी का ना पढ़ सकता हो और वकील भी ना बना सके तो वो जिस ज़बान में चाहे हर उस लफ्ज़ के ज़रिए तलाक दे सकता है जो अरबी लफ्ज़ के हम माना हो। जिस औरत से मुठा किया गया हो मसलन 1 साल या 1 महीने के लिए उससे निकाह किया गया हो उसे तलाक देने की का कोई सवाल नहीं। उसका आज़ाद होना इस बात पर मुनहसर है कि मुद्दे की मुद्दत ख़त्म हो जाए। या मर्द उसे मुद्दत बख्श दे। मसलन कहे मैंने मुद्दत बख्श दी और किसी को उस पर गवाह करार देना और उस औरत का हैज़ से पाक होना भी लाज़िम नहीं है। ठीक है? यानी जो दायमी अक़्द है उसमें ये शर्त है कि वो जब किसी औरत को तलाक दे रहा है तो उस पर गवाह को मुकर्रर करे और सीगे को पढ़े। लेकिन जो मुत्तकी है उसमें सीगे को पढ़ना ही लाज़िम नहीं। ठीक है? उसमें बल्कि वो मुद्दत मुअय्यन होती है जैसे ही उसकी मुद्दत या तो बख्श दी गई है या फिर वो मुद्दत ही ख़त्म हो चुकी है। तो जैसे ही मुद्दत ख़त्म हो गई या बख्श दी गई, वो ख़ातून जो है वो उससे आज़ाद है।